Good morning, dear students. This is the class 10th chemistry. Students, maybe all of you fit and fine. Class 10th students, this is the your board examination time. Maybe all of you prepare according to the board examinations, because every students totally focus on the preparation. Maybe all of you prepare also. If you not aware, then please aware to prepare all the syllabus which is related to your topic, your board examination. My best wishes is always with you. Maybe if you 100% focus on study, then you will get a good marks. This is my best wishes. In this year, all of you get a good percentage, good mark in your board examination, and your future will bright. This is my best wishes. So students, today we discuss the topic, that is the chapter carbon and its compound. This chapter is the basic chapter of your chemistry. This is also related to the higher classes, but this is the basic chapter in your class. So students, we discuss the important topic, not whole chapter, because this is the main time. In this time you will prepare according to the board examination. So all of you take serious all these topics which we want to discuss, because these are the important topic and many questions will ask related to this topic. Okay, so the name of the chapter is the carbon and its compound. Students, the first topic of this chapter means the important topic of this chapter. We say that first topic, तो इसके पहले बहुत सारे topics हैं, but we want to discuss the important topics of the chapter. So the important topic of this chapter is the functional group. Students, what is the functional group? Actually आप कोई भी फार्मूला जब लिखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब राइट करते हैं, तो उसमें उस कंपाउंड का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि उस कंपाउंड की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है. तो जो पार्ट उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करे, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप. देखिए हमने डेफिनेशन यहाँ आपको लिखा है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which gives the special properties to the organic compound is called functional group. Students, functional group तो बहुत सारे होते हैं, बट आपके कोर्स में कुछ लिमिटेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं. ये आपको हमेशा लर्न होने चाहिए, क्योंकि इससे एक या दो मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं. जैसे हेलो मीन्स हेलोजन, आप जानते होंगे. इसका फंक्शनल ग्रुप आपका Cl, Br, Fi में से कोई एक होता है. ये मोनोवैलेंट होता है, यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है. अल्कोहल, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड OH लगा है तो इसको आप कहोगे अल्कोहल, और ये भी मोनोवैलेंट होता. मोनो मीन्स सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO होता है. इसको हम बॉन्ड के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1, 2, 3 एंड 4. ये हमेशा सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है, इसलिए इसको भी कहते हैं मोनोवैलेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स होता है कीटोन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. ये डबल बॉन्ड से ऐड होता है, इसलिए इसको डाई वैलेंट कहेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम बॉन्ड के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड से स्टूडेंट्स ऐड होता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, मोनोवैलेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स ईथर O, सिंगल बॉन्ड इस साइड में, सिंगल बॉन्ड इस साइड, डबल साइड से जुड़ता है, ये भी आपका डाईवैलेंट है. अमाइन, सिंगल बॉन्ड NH2, दिस इज आल्सो द मोनोवैलेंट. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द
functional group topic, and this is the important. So always you remember all these, because from this table one question will ask in your examination. So always you remember this functional group in your exam, given the compound and asked to which functional group is present in this compound. तो आप अगर देखिएगा OH है तो अल्कोहल होगा, सिंगल बॉन्ड CHO है तो एल्डिहाइड है, CO है तो कीटोन होगा, COOH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, O लगा होगा केवल तो ईथर, और एमाइन अगर है NH2। ठीक है, तो ये हमेशा आप लर्न रखिएगा, इसमें से 1 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस, स्टूडेंट्स नेम से क्लियर है, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स आपने पढ़ा होगा, होमो मीन्स सेम, सिमिलर। तो अ सीरीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी अगर हम कंपाउंड की एक सीरीज लिखें कि जिनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप रखती हो, और दूसरा कैरेक्टर स्टूडेंट्स क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। नेक्स्ट इसका है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इन विच द 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाई CH2, यानी पहले मेंबर और दूसरे मेंबर में कितने का डिफरेंस हो, CH2 का डिफरेंस हो। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ में सारे कैरेक्टर होंगे, क्या क्या कैरेक्टर, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, और अगर CH2 का डिफरेंस है एक दूसरे में, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहेंगे स्टूडेंट्स होमोलॉगस सीरीज़। ठीक, अभी आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी होमोलॉगस सीरीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जितने भी एक सीरीज़ के मेंबर होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। जैसे अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अगर हम एल्कीन की बात करें तो इनका फार्मूला CnH2n होता है, और अगर हम एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। तो अगर एल्केन सीरीज के जितने भी मेंबर होंगे वो इस फार्मूला का फॉलो करेंगे, किसका, CnH2n+2 का। अगर एल्कीन सीरीज़ के हैं तो सारे का मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होगा, ये इस फार्मूला का फॉलो करेंगे। और अगर एल्काइन सीरीज़ के हैं तो सारे CnH2n-2 का फॉलो करेंगे। ठीक, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2। अभी आपको डेफिनेशन हमने बताया था कि कितने का डिफर होना चाहिए स्टूडेंट, CH2 का। अब जैसे हमने देखिए यहाँ लिखा CH4, तो दूसरा मेंबर इसका क्या होगा, C2H6 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 है, आपने कहा कि CH2 का डिफर होना चाहिए, तो यानी एक कार्बन का डिफर होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन का। तो देखिए यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 हो गया, तो कितने का डिफर हो गया, 1 कार्बन का। और यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो कितने का डिफर हो गया, 2 का, तो CH2 का डिफर हो गया। इसी तरह अगर इसमें देखो, यहाँ C2H6 है, यहाँ C3H8 है, यहाँ कार्बन 2 हो गया, यहाँ कार्बन 3 हो गया, तो 2 और 3 में कितना डिफरेंट हो गया, एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, 8 में से 6 निकल गया, कितना हो गया, 2, तो इसमें भी CH2 का। तो आप हर में देखेंगे CH2 का डिफरेंस है, इसलिए ये सारे के सारे होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है होमोलॉगस सीरीज की कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा स्टूडेंट्स तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से होता है कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स, यानी एक सीरीज़ के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका प्रिपरेशन मेथड भी क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। और स्टूडेंट्स लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है होमोलॉगस सीरीज की कि एज द होमोलॉगस
एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज करेगा इन एनी होमोलोगस सीरीज द रेगुलर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन। जैसे 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 मॉलिकुलर मास बढ़ता जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होती जाती है, उनकी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। तो आपने ये लिखा कि एज मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज रेगुलर चेंज इन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन, यानी जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस की स्टेट, या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब चेंज होती जाएगी, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज़ है। और स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज भी आपके एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। या तो आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि होमोलोगस सीरीज का मेंबर है या नहीं है, या कोई कंपाउंड दिया होगा उसका नेक्स्ट आपको राइट करना होगा, या तो आपको डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ यू read this topic and try to understand. Okay, the next topic, students, I want to discuss some question related to this topic. Students, the first question related to these two topics, the first that the name the functional group present in the following compounds. हम आपको कुछ कंपाउंड्स के दिए गए हैं, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप पूछा है। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं। जैसे देखिए आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें दी हैं, इतने पार्ट्स आपको दिए हैं, और इसमें आपसे पूछा है कि इसमें बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए इसका आंसर हमने इसी के सामने राइट कर दिया। यहाँ पर अभी बताया गया OH आया है। OH आपको बताया गया जब OH आता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है। अगर स्टूडेंट CH आया होगा CHO तो इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर COOH है स्टूडेंट्स हमने बताया इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर CO है तो इसको हम कीटोनिक ग्रुप कहते हैं या कीटोन ग्रुप कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर OH है तो आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया, और अगर COOH है तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और CHO अगर है तो क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के आपके कंपाउंड दिए होंगे, इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑल ऑफ यू ऑलवेज रिमेंबर दिस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। OH अगर है तो अल्कोहल, CHO है तो एल्डिहाइड, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CO अगर है तो कीटोन, OH है तो अल्कोहल, COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और CHO है तो एल्डिहाइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम शेयर करना चाहेंगे। नेम द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज ऑकर एट द, यानी उस फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए। नेम द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज ऑकर एट द, यानी जो पाया जाता है कहाँ पर, पहला एंड ऑफ द कार्बन चेन। जब कंपाउंड लिखा जाए तो सबसे लास्ट में एक फंक्शनल ग्रुप लिखा जाए, और मिडिल ऑफ द कार्बन चेन, जो मिडिल में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा कंपाउंड जब आप राइट करते हो तो एंड में यानी कार्बन के लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं वो दो होते हैं। एक स्टूडेंट्स होता है एल्डिहाइड और एक होता है कार्बोक्सिलिक। तो कभी भी कोई कंपाउंड आप लिखोगे तो कार्बन चेन के लास्ट में सबसे ज़्यादा जो फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है वो आपका होता है, एक तो होता है स्टूडेंट्स कौन सा, एल्डिहाइड। CHO अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। और अगर COOH स्टूडेंट्स है तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि हमेशा कार्बन चेन के कहाँ लगते हैं, एंड में लगते हैं। याद रखिएगा, ये अगर कभी बीच में आप राइट कर देंगे तो इसका मतलब आप गलत राइट कर रहे हो। दूसरा है मिडिल ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन के मिडिल में कौन आते हैं, तो स्टूडेंट्स कार्बन चेन के मिडिल में जो आता है ऑलवेज कीटोन आता है। कीटोन का डबल बॉन्ड CO, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कीटोन है। तो कीटोन हमेशा मिडिल में आता है, ये कभी एंड पर नहीं है। अगर आप एंड में राइट कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ रॉन्ग आप कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि राइट द नेक्स्ट होमोलॉगी ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ कंपाउंड आपको एग्जाम में दिया है और इसका आपको नेक्स्ट होमोलॉगी लिखना है। अब हमने बताया स्टूडेंट्स होमोलॉगी आपको बताया गया था भी पीछे कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए और CH2 का डिफर होना चाहिए। अगर ऐसा कैरेक्टर है तो होमोलॉगी होगा। होमोलॉगी मतलब होमोलोगस सीरीज का मेंबर।
तो हमेशा CH2 का डिफर होगा। तो जैसे देखिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन मान लीजिए क्वेश्चन दिया है CH3OH, इसका अगर होमोलॉगी लिखना है तो हम इसमें CH2 का डिफरेंस करेंगे, CH2 आप जोड़ लो। तो CH2 अगर जोड़ेंगे देखिए 1 कार्बन एंड 1 कार्बन कितना हो गया, C2 हो गया, और 3 and 2 5 हो गया, और OH आपका सेम हो गया, ये होमोलॉगी मेंबर हो गया। इसी तरह इसमें भी अगर CH2 ऐड करोगे, चूँकि CH2 का डिफर होना चाहिए, तो यहाँ आपका देखिए 1 कार्बन 2 हो गया। तो इसको देखिए आप सेपरेट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये C है एंड 1 and 3, देखो 2 and 1 3 हो गया CH3, और ये CHO ये लिख दिया गया। अगर स्टूडेंट्स इसमें देखिए CH2 का डिफरेंस करेंगे तो ये इसके साथ ऐड होगा 3 होगा, तो CH3COOH। अगर स्टूडेंट्स इसमें करोगे तो ये आपका CH3 ऐसे लिख दो, इस CH2 को इसके बाद ऐड कर लीजिए, और ये आपका CO। तो मीन्स आप हर में देखिए CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2, यहाँ इसमें CH2 का डिफरेंस हो गया, 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 क्योंकि हमने CH2 ऐड किया। तो हमेशा याद रखिएगा, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया और CH2 का डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब होमोलॉगी हो गया। यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप CHO है, यहाँ पर भी CHO है, और CH2 का डिफरेंस भी हो गया। यहाँ पर भी देखिए COOH फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर भी COOH है, और डिफरेंस कितने का हो गया, CH2 का हो गया। यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, और CH2 का डिफर हो गया। तो हमेशा CH2 का डिफर हो गया और फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, इसका मतलब होमोलॉगी हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर नेक्स्ट होमोलॉगी आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि उनमें CH2 का डिफरेंस आपको करना है, यानी पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में एक कार्बन का, माने पहले में एक होगा, दूसरे में 2 कार्बन, यानी CH2 का डिफरेंस एक कार्बन ज़्यादा होगा और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसा डिफरेंस होगा तो होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, राइट द नेक्स्ट 2 होमोलॉगीज। अब 2 लिखना है, यहाँ पर केवल एक लिखना था, एक, नेक्स्ट मतलब अगला, और यहाँ पर 2 लिखना है। ये आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिया है। ये देखिए अब हमने बताया CH2 का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप दिया नहीं है तो आप भी फंक्शनल ग्रुप मत लिखो। अब लेकिन CH2 का डिफरेंस करोगे, तो अगर CH2 का डिफरेंस करोगे तो इसमें CH2 ऐड कर दो, तो CH2 ऐड करोगे 3 and 1 कार्बन कितना हो गया 4, और 6 में 2 ऐड करो कितना हो गया 8। अब इसका अगला क्या होगा, इसमें 1 ऐड करो को होगा 5, और इसमें 2 ऐड करोगे क्या हो गया 10 हो गया। अब स्टूडेंट्स ऐसे देखिए इसमें CH2 का डिफरेंस करो, तो अगर CH2 करोगे तो एक कार्बन यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ 3 हो गया, और इसमें 2 होगा तो यहाँ 8 हो गया। क्योंकि CH2 देखिए हर में आप कितने का डिफरेंस करोगे, CH2 का डिफरेंस करोगे, तो CH2 सब में ऐड कर दो। अगर CH2 सब में ऐड करोगे, जैसे इसमें ऐड करोगे 3 and 1 कितना हो गया 4, और 2 and 4 कितना हो गया 6। अब इसके बीच भी CH2 का डिफरेंस करोगे तो यहाँ 4 and 1 कितना होगा 5, एंड 6 2 कितना हो गया 8। तो स्टूडेंट्स कभी भी अगर होमोलॉगस सीरीज आपको राइट करना होगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें CH2 क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप दिया तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम हो जाएगा, और नहीं दिया है तो केवल आप CH2 को ऐड करते जाइए। तो स्टूडेंट्स मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज 2 टॉपिक्स, दैट one is the functional group and second is the homologous series. So from these 2 topics many question will ask in your board examinations every year. So all of you revise all these topics. Once I highlighted all these topics. The first that is the functional group, students. So all of you revise the functional group and also remember the name of functional group, because this is the important topic and many questions will ask in your examination. And the second that the homologous series, this is the definition of homologous series, and this is the characteristics of homologous series, because if you have remember the characteristics then you will write the perfect answer of all questions, and these are the questions related to these topics. So maybe all of you if see this video carefully and try to understand, then you find out the correct answer and write the answer if any question will ask related to this topic. Okay, so students, all of you see this video, try to understand, you like, subscribe and share my channel, and say to other to subscribe this channel, because this channel is this channel help to you to increase your knowledge, and you will gain a good mark in your board examinations. So all of you subscribe and say to other to subscribe this channel, because this channel
इज़ हंगर टू योर लव। मीन्स आप अगर अफेक्शन दिखाएंगे, अगर आप प्यार दिखाएंगे, तो आप इस चैनल से बहुत कुछ गेन कर सकते हो, आप बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ आपको एग्जामिनेशंस में, आपको लाइफ में बहुत सारी हेल्प्स मिलेंगी। बट आप इसको अगर अफेक्शन दिखाते हैं तो आपके लिए, आपके प्यार से ये चैनल बहुत ही आगे आपको बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड अपनी 100% एनर्जी को स्टूडेंट्स इस समय स्टडी पर फोकस करिए। आप जितने टाइम पढ़िए, कोई जरूरी नहीं कि आप 5 आवर 6 आवर 10 आवर पढ़िए, आप 2 घंटे भी पढ़िए, लेकिन जितने टाइम आप पढ़िए अपनी पूरी एनर्जी को उस पढ़ने में लगाइए। उस समय सारी चीज़ों के भूल जाइए, उस समय क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको भूल करके आप अगर सारी एनर्जी को उस टाइम पढ़ने में लगाएंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। तो आप जितना पढ़िए उस समय 100% पावर के साथ, 100% एनर्जी के साथ पढ़िए। उस समय अपने को हर पूरे जितनी भी, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़ हो, चाहे घर का माहौल हो, आपके स्कूल का माहौल हो, कैसा क्या है, इस सब चीज़ों को भूल करके आप 100% अपने को स्टडी पर अगर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले से आप बेटर होते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स, माई बेस्ट विशेस is always with you. So take care students, bye bye.